Hello everybody, Namaste, मैं हूँ Taro Genie and welcome to the channel and welcome to your July prediction. Monthly prediction is something that I have been planning for a long time, not only for the viewers of the YouTube but also people who have taken my guidance just so that they can be guided on a monthly basis. So here comes the monthly guidance starting from the second half of the year and you see the cards in front of me. Let me see how I have designed it. Here are the cards that we will be using. Here is our Ganesha. The purpose of using the Ganesha card is to get his blessings right there as we get started with the month. So this is bringing in the beautiful energy, the शुभ energy of हमारे प्यारे से गणेशा जी. उसके बाद हम देखेंगे आपकी जर्नी इस मंथ कैसा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही गणेशा जी की ब्लेसिंग्स ले ली है तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, दैट्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी मंथ की जर्नी ओवरऑल कैसी होने वाली है. उसके बाद देखेंगे हम कि कौन सी मेन इश्यू है जिससे कि आप डील करने वाले हैं. यू गोना रेस्ट योर मसल्स विद इट. वी विल सी द डिटेल्स, वी विल सी द affirmations that you should have on your mind as you take on the journey of this month. And then of course we will see the surrender card, एक चीज जिससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए. We will see our easy breezy messages from our mermaids and dolphins. We will do it as usual, we do it for the celebrities. So let's get started with the guidance. First of all we will seek our गणेशा जी का blessing. तो हम 3 कार्ड निकालेंगे and उसके पहले मैं कुछ crystals रख लेती हूँ यहाँ पे. Let's take the clear quartz, aquamarine and why not take the brown jasper this time. तो चलिए देखते हैं, हम अपने एंजल से ब्लेसिंग्स लेते हैं आपके आने वाले जुलाई के महीने के बारे में. कौन से उतार, क्या से चढ़ाव, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या चैलेंजेस, क्या कुछ महीना लेके आ रहा है आप लोगों के लिए. चलिए देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताता है. God's goddess angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all of us who want some guidance for the coming month, July. Thank you for giving us this guidance. We thank you so much for giving us the 3 cards and we have the first card. Thank you so much. We have the second card and one more card. Wow, so we will take this card. This has shown up, really wants to come out. Why not? Let me arrange this for you. And there you go. You can choose the stone, you can choose the cards, you can choose the whole thing that draws your attention. Take all the time you need to choose the card, guys. Pause the video and let me get started with the pile number 1 here. I will see you in your readings. हेलो पाइल नंबर 1. चलिए देखते हैं जुलाई की जर्नी आपकी कैसी होने वाली है. ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं आपका स्टोन और ये है हमारा इम्ब्रेस, यानी कि गणेशा जी का जो एनर्जी है. गणेश जी क्या बोल रहे हैं, इम्ब्रेस करने के लिए कुछ हमको बोल रहे हैं. तो जुलाई के महीने में किस चीज को इम्ब्रेस करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज इम्ब्रेस करना है, क्या कोई एक नया माइंडसेट इम्ब्रेस करना है, क्या कुछ हमें न्यू हैबिट्स को इम्ब्रेस करना है. जो भी है हमें डिटेल्स आगे पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल मैसेज फ्रॉम विद एनर्जी ऑफ गणेशा जी, हमारे स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं यू रियली नीड टू एम्ब्रेस समथिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई. और अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो गणेश जी है ना, ये माउस जो उनका वाहन होता है उसको उन्होंने एम्ब्रेस किया हुआ है. तो क्या आपको भी आपके वाहन को एम्ब्रेस करने के लिए बोला गया है ना? वाहन को एम्ब्रेस करने के लिए बोलने का मतलब क्या होगा यहाँ पे? इसका मतलब देखिए, वाहन जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है. इट बेसिकली ब्रिंग्स मूवमेंट इन आवर लाइफ. It takes us from where we are to where we want to go. So what I am getting is that you need to embrace something that can actually move you from the place you are to the place where you will go or you basically want to go.
बेसिकली अगर आपका कोई गोल है, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए जो आपको वाहन की जरूरत है ना, उसको एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी रहेगा। अब ये वाहन डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। कुछ के लिए तो अपना स्ट्रेंथ ही एम्ब्रेस करना हो सकता है, कुछ के लिए कुछ एक्शन एम्ब्रेस करना जरूरी होगा, कुछ के लिए डिसिप्लिन शायद एम्ब्रेस करना जरूरी होगा। हम देखेंगे कि ये माउस जो है ये एम्ब्रेस क्या चीज आपके लिए, दिस माउस एनर्जी इज व्हाट इज इट ट्रांसलेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे बहुत ही प्यार से गणेशा जी ने बहुत ही प्यार से अपने वाहन मूषक जी को बिल्कुल गले से लगा के बैठे हुए हैं। नंबर है 11, ये किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। चलिए अब हम देखेंगे कि विद दिस लाउड मैसेज ऑफ यू being asked to embrace something, let's see what your journey is going to be like. So seeking the blessings, let's see. God's guidance, angels, Archangel Michael, thank you for the divine guidance and blessing coming for all the pile number 1. What is that they need to know, how their journey is going to be. Yes, reaching your destination. Didn't we talk about the destination? कोई वाहन है, देखो यहाँ पे कृष्णा ने मैं कृष्णा हमेशा, एनीवेज यहाँ पे देखो स्पिरिट गाइड्स ने बोल दिया है कि यू नीड टू, ये आपको मूषक को ना आपका जो वाहन है उस पर फोकस करने की जरूरत है। दिस इज गोइंग टू, एंड यहाँ पे ऑलरेडी इस पे फोकस डाल दिया गया है और यहाँ पे आपके सामने रास्ता दिखा दिया गया है। अगर आपने यहाँ पे ही बात मान ली है, एक्सेप्टेंस दे दिया है कि यस आई नीड अ वाहन, वो मेरे वाहन पे फोकस है, ये चीज है, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ये रास्ता, ये जो जर्नी आपकी होने वाली है ना, ये आगे बढ़ाने वाली जर्नी होने वाली है जुलाई की। यहाँ पे आपको रास्ते तय करने हैं, घर से बाहर निकल के इस पे वॉक करना है। और शायद इसीलिए स्पिरिट गाइड्स ने, यूनिवर्स ने बहुत ही क्लियरली आपको बोल दिया है कि आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है मूषक जी को, आपका बेसिक व्हीकल जो कि आपको यहां से यहां तक लेके जाएगा, डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, यहां से वहां। जैसा मैंने आपको बताया कि व्हीकल इज समथिंग दैट टेक्स यू फ्रॉम हियर टू हियर where you want to go to your destination, and here is your destination. So we are moving in the right direction. Let's keep on going. काफी रास्ता तय करने वाले हैं आप जुलाई के महीने में, डेफिनेटली पिकिंग अप दैट। और अगर आप इस रास्ते पे आगे बढ़ते हो तो बैक ऑफ द डेक में जो कि आपको दिख नहीं रहा था, व्हाट इज वेटिंग फॉर यू एट द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन, अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। लेकिन ओनली इफ यू चूज टू वॉक ऑन दिस path that is unfolding for you in the month of July, and also embrace the vehicle. Different vehicle type for different people, as I told you in the beginning itself. अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि आप किस चीज से, ये आपकी जर्नी होने वाली है, ये आपका मैसेज है ओवरऑल, एंड लेट्स सी व्हाट इज द थिंग दैट यू विल रेसल विथ। रेसल करेंगे, इजी ब्रीजी रहेगा, जो भी है। चलिए हम देख लेते हैं। थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द पाइल नंबर 1। ये आ गया है आपका गाइडेंस। एक्सचेंज गिफ्ट्स, और ये रिवर्स में है तो मैं रिवर्स में ही लूंगी। थिंकर है एट द बैक ऑफ द डेक में आपके लिए। अब ये वाला कार्ड जो है, इसका मैसेज मैं आपके लिए गाइड बुक से पढ़ूंगी। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स 27 नंबर का कार्ड, बट हमें प्रोटेक्शन मैसेज पढ़ना है तो जल्दी से लेट्स डाइव डीप इनटू इट। 27, exchange the gifts, right? Here is your card and let's read it. Be careful what you pray for, because you just might get it and then realize you don't want to face the hefty price tag that comes with it. You may find yourself in a situation you have always desired, but now you will have to walk away from or even fail at it because you can't or won't pay the dues it asks of you. If you want to be a famous musician, you have to practice your craft every day. If you want to be a millionaire, you have to be responsible
for managing the money and paying the taxes. Even a windfall bears a cost. It's okay though, because spirit will help you achieve balance over time. Another message here reminds you that being only the giver and not the receiver plays out in many relationships in your life, where you find yourself in a victim mode, in a codependent dynamic, or holding on to a false sense of control. Others may push you to continue to prove yourself. The time has come to distance yourself from this kind of imbalance. Being aware of the need for both give and take is the first step to your true destiny. It's all good and getting better. Not only can you handle this, but you can flourish as a result of this. Wow, what a message. Interesting enough. यहाँ तक तो हम बहुत ही स्पीड से जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके यूनिवर्स ने क्या किया है, गूगली बॉल फेंका है. अब इसका मतलब क्या हुआ है एंड व्हाट इज हाउ इट इज रिलेटिंग टू दीज टू कार्ड्स गाइज. It's a different throw of message in the divine guidance that we are seeking for pile number 1. Now let's understand this guys. यहाँ पे आपका नया रास्ता, यहाँ पे आपको रास्ता दिख रहा है, लेकिन ये कार्ड जिस तरह से अपने आप को इसने लॉन्च किया है रीडिंग में, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये एक नया रास्ता हो सकता है आपके लिए, जहाँ पे एक प्रॉपर ऑनरिंग है गिव एंड टेक का. सो नाउ थिंक ओवर इट. क्या आप अपने सिचुएशन में इस तरह से इन्वॉल्व है जहाँ पे you are only the giver and you are not receiving anything from the people that surround you? So you really have to think over it, क्योंकि thinker का भी कार्ड आया था at the back of the deck इसके. तो you have to think over it कि किस तरह के सिचुएशन से आपने अपने आप को सराउंड किया हुआ है. Before expecting others to honor your energy, are you honoring your energy or not? Are you accepting things that are less than acceptable? तो बस गिव करने से काम नहीं चलेगा. अगर आप if you are doing something that is unacceptable for others, then you shouldn't accept it for yourself also, because when you are doing that, you are sending a message, a loud message rather, to the universe कि it is okay for me to be treated like this. तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गिव एंड टेक का इम्बैलेंस है, बिग टाइम इम्बैलेंस है. तो वहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करना है, पॉन्डर करना है, और फिर आपको सोचना है कि क्या यही रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रुथ को फेस करना बहुत ज़रूरी होगा. क्या आप बस कुछ चीज़ को यू हैव कॉम्प्रोमाइज एंड एक्सेप्टिंग थिंग्स फॉर द फियर ऑफ वॉकिंग ऑन अ न्यू पाथ. लेकिन ट्रुथ को फेस करना बहुत ज़रूरी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रुथ को फेस करने के बाद जो आप चॉइस करते हैं, जो रास्ता चूज करते हैं, वही आपको आपके ट्रू डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा. नहीं तो क्या होता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ एड़ी टेढ़ी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइफ में. ना ही वो एड़ी तिरछी चीज़ हमें परेशान करती है, बट जिस रास्ते को हमने चूज़ कर लिया, उस आड़ी तिरछी चीज़ को एक्सेप्ट करके वहाँ पे पहुँच के हमें कुछ फुलफिलमेंट भी फील नहीं होने वाला है. तो वो चीज़ है, हमें डेस्टिनेशन पे तो पहुंचना है, पर हमें सही डेस्टिनेशन पे पहुंचना है एज पर आवर सोल प्लान. ऐसा ना हो कि हमने कोई गलत रास्ता ले लिया हो और उस डेस्टिनेशन पे अगर हम पे भी अगर हम पहुंच जाते हैं तो कुछ कमी सी रह जाएगी. इसीलिए बोला भी जा रहा है ना कि फाइंड आउट इफ आप जो चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं इट्स लाइक going by the first message of this card कि are you sure what you are asking for and what you are wanting, what you are desiring. तो एक बार रिफ्लेक्ट कर लो कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो, क्या वो सच में उस पे जाना चाहते हो या फिर कोई एक इल्यूजन है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं. क्या ज़रूरत है कोर्स करेक्शन करने की? क्या अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है? क्या एक नए रास्ते को एम्ब्रेस करके चूज करने की ज़रूरत है? उस पर वॉक करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस रास्ते पे जब हम वॉक करके चलेंगे अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ, तो हमें जो डेस्टिनेशन मिलेगा उससे हमें 10 ऑफ कप्स की फीलिंग प्राप्त होगी, यानी कि 10 ऑफ कप्स, फुल इमोशनल फुलफिलमेंट. तो ये सारी की चीज़ें हैं. येस, एम्ब्रेस हमें कुछ करना है. कुछ लोगों के लिए विद द वे द
energy is turning out. For some people it could be change, reflecting on what you are doing right now. Is it in alignment with your core values, what you really want, what your soul wants? Are you really happy doing this? If not, then probably you need to embrace a new path. For others, it could be embracing a new thought process, mindset, habit, behavior, strength. But yeah, a cloud message for a lot of few people because it's a general guidance. Yes, हर तरह के messages आएंगे. So that is what we are getting, guys. All right, अब हम क्या करेंगे, हमको अब इसमें details में जाना है. So we will pick up the cards. Give me a moment. All right, guys. तो हम ये वाला tarot deck से आपकी energy check करेंगे. We'll get a little more detail about your journey of the month of July. क्या आपको बोल्ड होके कुछ रास्ते तो चूज करने हैं, क्या तलवार लेके कुछ चीजों को काट के पीछे छोड़ देना है? Thank you to angels for the guidance coming for all the pile number 1. What is that they can know more about their July journey? Thank you so very much. Yes, आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये एनर्जी किस चीज से क्रॉस हो रही है? मेहनत तो करते हो लेकिन जजमेंट डे नहीं आ रहा है. यानी कि इस आप मेहनत कर रहे हैं, आपका टेस्ट हो रहा है, बस एग्जाम पे एग्जाम पेपर्स लिखते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, पर हम पहुंचेंगे कब वहां पे? ये जजमेंट डे कब आएगा? हमको अपने मेहनत का रिजल्ट कब मिलेगा? कब शनिदेव हमसे खुश होकर हम पे कृपा करेंगे? बस हम मेहनत करते जा रहे हैं, सेल्फलेसली मेहनत कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस करके मेहनत कर रहे हैं, बट हम पहुंचेंगे कब वहां पे? वही बात है. कोई चीज है जो आपके मेहनत का रिजल्ट, कोई रीजन है कि कोई आपके मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है. यानी कि यूनिवर्स तो आपके लिए ये जजमेंट का कार्ड लेके आना चाहता है, बट यहां पे ही कुछ शायद है जैसे कि हम देख नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि हम अपने काम पे इतना फोकस्ड है ना कि हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं. हम देखेंगे कि आगे रीडिंग कैसी जाती है. क्या हमें यहाँ पे ही कुछ नई चीज को एम्ब्रेस करने के लिए बोला जा रहा है, जस्ट एज द मैसेजेस? तो वो देखेंगे. क्या आप एंड दिस जजमेंट का कार्ड इज ऑल्सो you getting the results of what you have sown. This is your karma ka card. This is you having worked a long time and it's time for you to get the things. But yes, थोड़ी सी रुकावट वहां पे डेफिनेटली आ रही है. हम देखेंगे सबकॉन्शियस लेवल में आपके थॉट्स. सन का कार्ड रिवर्स में है. ऑल राइट, पास्ट में क्या चीजें हो रही हैं? यस, दिमाग को साध के, लीडरशिप के रोल में, मैच्योरिटी के साथ आप अपनी चीजों पे फोकस्ड ही नहीं है, स्ट्रैटेजिकली डिसीजंस ले रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हैं. और यस, ये जो काम की एनर्जी आ रही है ना, ये मास्टरिंग अ क्राफ्ट इज कमिंग फ्रॉम योर दिस किंग ऑफ सोर्ड एनर्जी. Very precise, very to the point, knowing what to do, and importantly knowing what not to do. So you're going fine with things. I don't really see any problem, but yes, there is still something like why is this delay? Why is the sun still not shining? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में यही है, जब हर चीज सही हो रही है, जो कि आपका किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है द बैक ऑफ द डेक, सॉरी इन द पास्ट प्रेजेंट. सो ये जो मेहनत हो रही है ये इस एनर्जी से हो रही है, ऐसा नहीं कि स्कैटर्ड एनर्जी से हो रही है. इट इज कमिंग फ्रॉम द पावरफुल किंग ऑफ सोर्ड. एंड किंग ऑफ सोर्ड इज हु नोज व्हाट टू डू, व्हाट टू से, हाउ टू थिंक. ही इज सो परफेक्ट. तो जब हम सब चीज एक बहुत ही मेच्योरिटी के साथ सोच समझ के सही डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन तो नहीं, क्योंकि डायरेक्शन हमें हो सकता है कि चेंज करना पड़े, पर सही स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या चीज एक कमी हो जा रही है. ठीक है. और वाई इज नॉट सन शाइनिंग इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग गोइंग परफेक्टली फाइन? वी विल सी. कॉन्शियस लेवल पे आपकी क्या सोच है? यस, आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि व्हेन एवरीथिंग इज फाइन देन वेयर इज द थिंग going wrong probably, or why is it not happening? There is some missing link in this whole puzzle and you are thinking about it. You are thinking, why is the sun not shining when everything is just perfect? You are taking the right actions, right thought process, right mindset. Why not? चलिए देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड ये कहाँ पे होने वाला है. एग्जैक्टली किसी चीज की एंडिंग होनी है जो कि एंड नहीं हो रहा है, वो बार बार बैक टू स्क्वायर वन जा रहा है. आप देख रहे हो ना कि
कि यहाँ पे डेथ का कार्ड रिवर्स में है, यानी कि देयर इज सम एपिसोड दैट नीड्स टू काइंड ऑफ एंड एंड ब्रिंग इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन। लाइफ में कोई चीज चल रही है, वो घिसा पिटा रिकॉर्ड चल रहा है, उसके खत्म होने का टाइम आ गया है, ताकि एक नया सॉन्ग जो है शुरू हो सके, एक नई जर्नी शुरू हो सके। बट यहाँ पे क्वाइट पॉसिबली हम इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं कि हम आसपास का चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। ऑलराइट, ओके, some transformation needs to happen, but it is not happening. We are going back to square one, keep revisiting the situation. और इसीलिए बोला जा रहा है कि क्या आप इस तरह की कोई सिचुएशन में हैं, काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं है। ऑलराइट, तो वो चीज़ें हमें लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या कुछ आने वाला है। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यू फील टोटली अनसपोर्टेड बट स्टिल यू आर वर्किंग हार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स, रास्ते खुलना चाहते हैं आपके लिए पर खुल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ही अपने आप पे विश्वास करके आगे नहीं बढ़ रहे हो एंड यू आर फीलिंग ट्रैप्ड। ओके, यहाँ से रास्ता नहीं निकलने वाला है, हमें एक नया रास्ता तय करना पड़ेगा गाइज। वी विल हैव टू एम्ब्रेस अ न्यू पाथ। ओके, यू आर लुकिंग फॉर द न्यू पाथ, हियर इज योर न्यू पाथ। क्योंकि देख रहे हो ना क्या हो रहा है, ये एक तरह का, सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, होपफुली यू विल बी एबल टू सी दिस। आप यहाँ पे काम कर रहे हो, काम करने का रिजल्ट मिलना चाहिए, यहाँ पे कुछ रिजल्ट यूनिवर्स देना चाहता है बट आपके आसपास के लोग शायद नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए आप अनसपोर्टेड फील कर रहे हैं। बट स्टिल अनसपोर्टेड होते हुए भी यू नो व्हाट, विद दिस एनर्जी ऑल्सो यू आर नॉट गिविंग दिस अप। यू आर लाइक नहीं, सुधर जाएगा, लेट्स मेक इट वर्क, लेट्स कीप वर्किंग हार्ड। क्योंकि हमको बचपन से यही बताया जाता है ना, वर्क हार्ड। बट we totally negate what kind of environment we are operating in. Is the environment even supporting you 20%? And if it is not supporting you 20%, it's not your path. The path is something else. This is not your path. Do you see this? जहाँ पे आप जा रहे हैं ना, आप देखो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ हुआ। आइडियली इसको ऐसे आके ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसको एंड करके जो भी जिस सिचुएशन में भी हैं आप, जो सर्व आपको नहीं कर रहा है, क्यों नहीं सर्व कर रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर सर्व किया रहता तो आप ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से नहीं जूझ रहे होते। द वेरी फैक्ट कि आप एटीट्यूड में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फील करते हैं, विच इज एज इफ कि आपको बिल्कुल एक IV पे डाल दिया गया है, सलाइन वाटर पे डाल दिया, लेकिन यू आर स्टिल गिविंग। और आपका ये मैसेज भी है, गिविंग। क्या आप बस देते जा रहे हो, एक्सपेक्टिंग दैट समथिंग लिटिल विल कम, बट इट इज नॉट कमिंग। एंड यस, दिस एनर्जी इज रियली squeezing the blood out of you, squeezing the energy out of you, squeezing the motivation out of you. तो आइडियली तो इस सिचुएशन को एंड होके आप आगे निकल जाते, यू वुड हैव अलाउड द ट्रांसफॉर्मेशन टू हैपन। लेकिन क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहता है, लेकिन हमारा ये जो एटीट्यूड है ना, जो कि आगे नहीं बढ़ रहा है। सी, वी आर 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी हैव ऑल द टैलेंट। आइडियली इस एनर्जी में आपको ऐसा लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, यू आर नॉट गुड इनफ to keep on going forward and all that. बट क्योंकि हम यहाँ से हमने क्या किया, यू टर्न ले लिया, हमें आइडियली इसको फेस करते हुए आगे बढ़ जाते तो हम इसमें फंसते नहीं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ से आगे तो बढ़े, ट्रांसफॉर्मेशन को हम होने नहीं दे रहे, हम यू टर्न लेके वापस वहीं पे जाते हैं। यहाँ से थोड़ा दूर निकलते हैं, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही वापस हम यू टर्न लेके आते हैं। एंड नो डाउट जब हम यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन जो यूनिवर्स लेके आना चाहता है वो नहीं एम्ब्रेस कर रहे हैं, वो नहीं एम्ब्रेस कर रहे हैं। सम ऑफ यू नीड टू एम्ब्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमने जब ये वाला कार्ड पिक किया था तो हमने सोचा भी नहीं था कि सम ऑफ अस हैव टू एम्ब्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। यू नो, वी हैव टू एक्सपेक्ट दैट दिस सिचुएशन इज नॉट सर्विंग अस, क्योंकि यहाँ पे हमारे गिफ्ट्स नहीं आएंगे, हमारा गिफ्ट कहीं और रास्ते पे आना है, किसी और रास्ते पे आना है, पर हम उस रास्ते पे आगे चल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए हैं, हम अपने आप को हमको लगता है कि हम में वो हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, चार्म नहीं है कि हम उस रास्ते पे चल सकते हैं। तो क्योंकि हमारा बिहेवियर ऐसा है, हमारी एनर्जी ऐसी लो वाइब्रेशनल है, हम अपने आप पे ही विश्वास नहीं कर रहे हैं और लो स्टैंडर्ड चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं लोगों से, तो क्या है, जो यूनिवर्स भी रास्ता खोलना चाह रहा है ना, वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, एम्ब्रेस ही नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि कैसे एक मूषक वाहन, आपका अपना मूषक आपको चूज करना है, जो कि आपको इस सिचुएशन से निकाल के लेके जाए।
उस सिचुएशन में लेके जाए जहाँ पे आप आगे अच्छे से बढ़ सकते हो. एंड नो डाउट, क्योंकि आप वापस यू कीप रिविजिटिंग द सिचुएशन, नो यू फील ट्रैप्ड, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपमेंट है ना. बैक ऑफ द डेक में क्लियरली मैं चेक कर लूँगी, येस देर इज समथिंग दैट वॉन्ट्स टू कम, बट दीज आर द पीपल. सी 5 of Pentacles, this is something unsupported environment, people wanting you to see you defeated and all that. Empress की एनर्जी खिल के आ नहीं पा रही है, क्योंकि हम ही कुछ नहीं देख रहे हैं. हम आंख बंद करके किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, बट आसपास का एनवायरनमेंट हम चेक नहीं कर रहे हैं. तो एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है हमें अपना व्हीकल, जो कि हमको यहाँ से निकाल के गाइस जहाँ ले जाए, जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पे ले जाए, तभी हम ट्रैप फील नहीं करेंगे. समझ रहे हैं ना. चलिए देखते हैं आपके लिए एक इजी ब्रीजी मैसेज क्या आता है. उसके पहले हम आपके लिए सरेंडर कार्ड देखेंगे. एक नई मंजिल मुझे लगता है आपका इंतज़ार कर रही है. डेफिनेटली यू नीड टू एम्ब्रेस. और आप बहुत सोच विचार में पड़े हैं, चिंतन मनन में पड़े हैं, और ये है आपका गणेशा का कार्ड जो बोल रहा है एम्ब्रेस. सो थैंक यू योर एंजल्स फॉर द कार्ड्स कमिंग फॉर पाइल नंबर 1. ऑल राइट, this is the first card, and because this is so in tune, this is what it is. आपको कंप्लीट हीलिंग का भी कार्ड आया वैसे, बाय द वे. शायद ये तो आपको खुद ही पता होगा. यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका मैसेज. लिसन टू द बॉडीज मैसेज अबाउट अ पर्सन and a situation which is not serving you. It is only taking away from you. If you feel physically drained or uncomfortable, be cautious. If you are energized and happy, move forward. लेकिन क्या आप energized feel कर रहे हैं या drained feel कर रहे हैं, uncomfortable feel कर रहे हैं या फिर happy feel कर रहे हैं? ये है आपकी attitude की energy which is clearly feeling deprived, taken advantage of, feeling unsupported. People are only taking from you. So this is what it is. And yes, you are not getting the love and the support. और आप क्योंकि इन लोगों के पीछे सराउंड है जो कि आपको लव एंड सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि यूनिवर्स प्रॉबली ऐसा ही है. लेकिन यूनिवर्स इज doing all these things so that it can put you on the trajectory where you can actually find people, your tribe, who will love and support you. चलिए आपके लिए एक इजी ब्रीजी मैसेज देख लेते हैं हम. Yes, yeah, you need to relax. Make time to relax, be still, enjoy your solitude, indulging to much needed self-care. And can this be any louder, guys? With this kind of effort, you are working very hard on something. And this, क्योंकि आप जितना मेहनत करके अपनी एनर्जी निकाल रहे हो ना, उतना वापस नहीं आ पा रहा है आपको. और इसीलिए आपको बोला जा रहा है टेक सम रेस्ट, अपना केयर करो. And not only should you literally take care of yourself, go for some, relaxing things which will help your physical body feel good. Body का rest करना है. But literally, you will have to set high standards for yourself. You have to stop accepting things. Maybe, take some consult expert. All right? Okay. अब हम देखेंगे आपका affirmation for the month of July. Let's see. कौन सा एक लिमिटिंग बिलीव है जो कि आपको इस सिचुएशन में ट्रैप करके रखा है and is not allowing you to embrace your power, your strength, new ideas, new beliefs, new possibilities. What is it? Let's see. Thank you, dear angels, for guidance coming in. A little difficult to shuffle this card, but let's take this. यहाँ पे देखिए, ये है आपका limiting belief. I am meant to be alone. Relationships usually end traumatically for me. Oh my goodness, how rough. Do you see this? Feeling abandoned, feeling left alone, taken advantage of. आप चाहे रिलेशनशिप में कितना भी कुछ करो, आपको उतना ही लव एंड केयर नहीं मिलता है. एंड शायद इसीलिए यूनिवर्स ने बोला है बी योर ओन हीरो. इफ जस्ट टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, गो फॉर दैट पैम्परिंग मसाज. दिस इज अ मरमेड हु इज रिलैक्सिंग इन दिस बाथ टब.
if you don't have to wait for others to do things for you, you can take those little baby steps for yourself. तो यहाँ पे फिर से हम पढ़ेंगे, I am meant to be alone, relationship usually ends traumatically for me. ये है आपका mindset guys, और यूनिवर्स बोल रहा है we need to embrace quite literally a new mindset. और वो mindset क्या है? I lovingly release disappointment in old relationships so I can give birth to new ones. नए रास्ते. Universe is presenting you new way of life in the month of July. Do you see this? Your light is shining bright. Yes, your light is shining bright, but you are not seeing this. आप अपना लाइट खुद ही क्या कर रहे हो? धूमिल कर रहे हो, कम कर रहे हो. यहाँ पे इसको ऐसे रखिए. ये आपका जो पावर है ना, ये क्राउनिंग ग्लोरी पावर जो है, ये स्वैग वाला पावर है, इसको कौन सी चीज ने उल्टा किया है? ऐसे आया था ना आपका ये कार्ड, इसको इस थॉट ने उल्टा किया हुआ है. आई एम मेंट टू बी अलोन. जबकि यू आर नॉट मेंट टू बी अलोन, यू शाइन व्हेन यू आर अलोन. You understand? Relationship usually ends traumatically for me. So a lot of you people, this is about relationship, could be business, could be personal, could be romantic. But yes, this is what it is. Let's see. I lovingly release disappointments in old relationship so I can give birth to new ones. ये वाला का screenshot ले लीजिए. Tell this, speak this to yourself. Let this go to your subconscious just before you go to bed. Repeat this when you get up in the morning. For 30 days, continue to do this and see the change you go through it. क्योंकि I will tell you, manifesting energy वाला पिकर कार्ड अगर आपने देखा है तो मैंने उसमें बहुत क्लियरली बताया है कि जब कोई चीज़ एंड हो जाती है लेकिन we keep regretting that, resenting that, feeling sorry for it, huge chunk of our energy is put into that. Instead, free yourself from it by forgiving yourself and the situation, anybody else involved, so that you have all the energy to embrace the new. क्योंकि यूनिवर्स आपको क्लियरली चीज़ें देना चाहता है. यहाँ पे देखिए जजमेंट का कार्ड है. योर डे हैज़ कम, but it is not happening because we are not learning the lessons. We are still repeating, resenting and regretting. तो ये हमको चेंज करना है guys. Okay, so this was the guidance coming for all the pile number 1. Thank you so much for watching guys, and I will see you again. Take care and wishing you all a very happy July. Bye. Hello pile number 2. चलिए देखते हैं आपका जुलाई का महीना कैसा होने वाला है. And you have got the card protection. Wow, this is beautiful. You have protection. Wow, Ganesha is protecting you. Universe is protecting you. Nice. See, यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि गणेश जी ऊपर से कहीं ऐसा फ्री फॉल हो रहे हैं. यहाँ पे पहाड़ है, बट इवन इफ यू फील दैट यू आर फॉलिंग in your life, there is a free fall in your life of something, know that you are protected completely. Even if आपको लगता है कि आप नीचे लाइफ में गिर रहे हैं, you are protected. No matter what is happening in your life, know that you are protected guys. This is a beautiful message. Let's see आपकी जर्नी कैसी होने वाली है. No matter what the journey is like, always know you are protected. So let's see. Thank you dear angels for the guidance journey coming for pile number 2. किस तरह की journey उनकी आने वाली है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं. Oh my goodness, how is it possible? Wow, do you see the message? Protected by angels, protection. You are cherished by the angels. Wow, what a double confirmation. Awesome. My goodness, no matter what, you guys are you guys are protected. All right, तो अब हम देखते हैं आपके पास एक डबल प्रोटेक्शन आ गया है. बिल्कुल एक बोलते हैं ना कि यूनिवर्स की प्रोटेक्शन सिक्योरिटी आ गई है आपके लिए. Z सिक्योरिटी आ गया है. What is that high level security? So wow, let's see what is that you will be dealing with mostly.
ऐसा क्या होने वाला है लाइफ में, इतना डबल प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, या फिर व्हाट आर यू गोइंग थ्रू इन योर लाइफ? लेट्स सी, लेट्स फाइंड इट आउट. Thank you, dear angels, for the guidance coming for pile number 2. Yes, यहाँ पे कुछ उल्टा है और यहाँ पे क्या है? Not for you. Okay, so maybe you are trying for. Okay, not for you. और यहाँ पे क्या है? Message in the bottle. All right. Now let me read this message for you. Again, this is going to be a protection message. Pile 1 का भी protection message था और आपका भी protection message है. 6 नंबर का कार्ड है. हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है protection का. Don't chase after what flees from you. Don't obsess over what eludes you. Don't bang your head against the wall. There is nothing romantic about what is unavailable. No prize given for torturing yourself, and nothing to be gained by refusing to see the red flags that have been waving since you began your pursuit. All right. Now is the time to walk away. There are other goals, other loves, other games, other successes waiting for you. The way out of obsessing is radical acceptance and surrender. Spirit wants only the best for you. This is a sign that you have something much better waiting for you. Trust. All right. Quite possibly आप pile number 1 से भी draw हुए होंगे. अगर if you felt drawn, you can always watch that for more clarity, more deeper guidance. लेकिन yes, looks like you are falling in something, you are doing something, you want to climb up something, but आप जितना भी ज़्यादा climb कर रहे हो, आप अपने आप को नीचे गिरता पा रहे हो, नीचे फिसलता पाते हैं, right? और आपके angels क्या बोल रहे हैं आपको? You know, you see that you are working hard and you're not getting the result. You are trying to climb and you keep slipping down. But whatever is happening is not happening to you, is happening for you. यानी कि आपको ऊपर इसीलिए आपने जो भी रास्ता चूज किया है ना, आपको ऊपर आगे इसीलिए नहीं जाया जा रहा है क्योंकि दैट इज नॉट मेंट फॉर यू. योर रिजेक्शंस आर योर प्रोटेक्शंस, जैसे बोलते हैं ना, तो वही है. जो भी चीज आपके लाइफ में काम नहीं कर रही है ना गाइज, इट इज योर डबल प्रोटेक्शन. यानी कि स्पिरिट गाइड्स आप है कि आप एक पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो जहां पे बिल्कुल सांप ही सांप है, and you work hard to get on that pahadi because you think that this is what I want as per your 3D understanding, but spirit guides and the universe and Ganesha knows, no, you don't have to go there. There are a lot of snakes that will bite you. और जब भी आप आगे थोड़ा सा पहुंचते हो, spirit guides आपको फिर से नीचे लेके आ जाते हैं. And you're like, what is this happening to me? You are doubly protected in whatever you are trying to achieve. Maybe there is, you're headed in the wrong direction. तो लगता है ऐसा. और इसीलिए आपका ये प्रोटेक्शन मैसेज है, नॉट फॉर यू. देयर इज दिस गेम ऑफ चेस विच इज ऑल अबाउट लूजिंग. मे बी यू आर लूजिंग समथिंग एंड यू आर लाइक, व्हाई इज दिस हैपनिंग? बट देयर इज समबडी प्रोटेक्टिंग यू, योर मूव्स. चलिए, ये सारी चीजें शायद क्वाइट पॉसिबली आपके लाइफ में हो रही होंगी, या फिर इट विल जस्ट, इट इज ऑल रेडी टू अनफोल्ड. It is going to build this crescendo in the coming month. Always know whether things are happening for you or not happening for you in the 3D. You are always protected. Double protection आपको मिला हुआ है. All right? Okay. Now we will take out our tarot. चलिए देखते हैं आपका मैसेज क्या. And quite possibly, I think, the pile number 1 had a similar message, and this also has somewhat similar message. Of course, with a difference here and there. But I think we are getting this kind of a message because I think we are going through the Saturn retrograde also, and we are, with this month July, we are stepping into the second half of the year. इसीलिए शायद कोर्स करेक्शन के लिए कुछ हमें स्पिरिट गाइड्स गाइडेंस दे रहे हैं. सो वो चीज़ लगती है. चलिए देखते हैं. डबल प्रोटेक्शन, you don't have to worry. Pile number 2. Thank you for the guidance coming for pile number 2. What is happening in their life? Ace of Pentacles reverse में है. Nevertheless, we will keep on shuffling.
10 ऑफ कप्स रिवर्स में, शायद फैमिली में कुछ इश्यूज चल रही हैं, कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है आपके लाइफ में जिसके कारण फैमिली पे असर पड़ रहा है, फैमिली के हैप्पीनेस पे, स्मूथ फंक्शनिंग पे असर हो रहा है। और वो क्या चीज़ है? यस, देयर इज समथिंग दैट यू आर ट्राइंग हार्ड टू अचीव बट इट इज़ नॉट हैपनिंग। एज इफ लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग, जिसके कारण फैमिली पे भी असर हो रही है, फैमिली के हैप्पीनेस पे असर हो पड़ रहा है। राइट, ओके, लेट्स कीप सबकॉन्शियस थॉट्स क्या हैं आपके? यस, व्हाई इज द जर्नी सो स्लो? मैं अगर लिटरली देखो तो ये वाला जो हॉर्स होता है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, ये एक जगह पे खड़ा रहता है, इट्स नॉट अ मूविंग हॉर्स। ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी दिनों से ना बस एक ही जगह पे खड़े हो, नो मैटर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, जो करियर की एनर्जी है ना, एक तरह से रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये आप सोच रहे हैं अपने सबकॉन्शियस में। पास्ट में कैसी एनर्जी थी? यस, एस ऑफ कप इन रिवर्स, चीज़ें नई रास्ते नहीं खुल रहे हैं। देख रहे हो, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, 10 ऑफ कप्स भी, एस ऑफ कप रिवर्स में है, 10 ऑफ कप्स भी रिवर्स में है, क्योंकि यहाँ पे वर्कआउट नहीं हो रही है। कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, एक नई एनर्जी लाने की कोशिश कर रहे हो, एक हैप्पी एनर्जी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ओपनिंग नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हमको पहुँचना है, नहीं हो पा रहा। कॉन्शियस लेवल पे क्या प्रोसेस चल रहा है? यू आर वेरी पॉजिटिव, और इसीलिए शायद आप कॉन्स्टेंटली, इवन जब आप फिसल जाते हैं ना, तो आप क्या करते हो? आप पूरे जोर शोर से और ऊपर पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करते हो, पर जैसा हमने बताया, दैट इज नॉट योर मंजिल। इसीलिए यू आर लाइक वेरी होपफुल कि थिंग्स विल वर्क आउट, सम डे लक विल फेवर मी। आपकी भी हॉर्स आगे बढ़ेगी। गोइंग फॉरवर्ड क्या होने वाला है? 3 ऑफ सोर्ड, यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि शायद हम इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि शायद हम गलत दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। एटीट्यूड क्या है आपका? यस, एटीट्यूड में कोई कमी नहीं है, जोश पूरा है। यू आर फोकस्ड, यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर पुटिंग द इंस्पायर्ड एक्शंस। एटीट्यूड में कोई कमी नहीं, इट्स अ विनर्स एटीट्यूड। You are like, I will make it happen. But we are seeing that we are heading towards this 3 of sword. 6 Queen of Cups in reverse में है guys, in your environment. Hopes and fears क्या है? Definitely आप ट्रैप फील कर रहे हैं। ये वाला कार्ड हमें पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप चेक कर सकते हैं पाइल नंबर 1। एटीट्यूड में हम क्या फील कर रहे हैं? मैंने हर चीज़ से हम जूझ रहे हैं, बट हमारा एटीट्यूड A1 है। वी आर लाइक फोकस्ड, इंस्पायर्ड एक्शंस, टैक 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 सब चीज़ कर रहे हैं हम। और यहाँ पे भी वी आर लाइक वी विल चेंज द डेस्टिनी, बट होप्स में कहाँ है? एक फियर तो नहीं बोलूँगी, बट एक ट्रैपमेंट है, ऐसे कि कोशिश कर कर के भी हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हमारी हॉर्स, हमारे एफर्ट्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है, एक स्टैग्नेंसी है। गोइंग फॉरवर्ड व्हाट हैपेंस? बूम, पेज ऑफ कप्स। फाइनली देखो, ऐसा लग रहा है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट कमिंग। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कोई एक न्यू बिगिनिंग देना चाहता है, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट यू वांट टू डू, बट प्रॉब्ली यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, बिकॉज वहां पे फाइनली जब यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है, तब आपने वो एक चीज एक्सेप्ट कर ली है। पेज ऑफ कप ने अपना कप एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि उसका अपॉर्चुनिटी है। बट यहाँ पे लग रहा है जैसे कि आप किसी और चीज़ पे ही फोकस्ड हो, पर यहाँ पे जो यूनिवर्स ने आपको न्यू बिगिनिंग देने की कोशिश चाह रहा है, क्योंकि इट इज़ प्रोटेक्शन। अगर ये कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है तो भी प्रोटेक्शन है, कुछ नया ऑफर भी आ रहा है तो आप नहीं देख रहे हो, तो वो आपको फाइनली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेंगे। वाओ, यू आर वेटिंग फॉर योर क्राउनिंग ग्लोरी मोमेंट, राइट। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए है कि यू आर वेटिंग फॉर, you are working hard to achieve something and make a grand entry where people will clap for you, people will wait for you. But यहाँ पे environment में people are not interested, वो अपनी ही चीज़ों में फोकस है। इस तरह की चीज़ भी लग रही है, लोग अपनी चीज़ों पे ही फोकस है। एनवायरनमेंट में एक डिसइंटरेस्टेड एनर्जी आपके लिए आ रही है, जबकि आप क्या कर रहे हो? You are like, people will celebrate me.
चलिए देखते हैं। प्रोटेक्शन का कार्ड डेफिनेटली है आपको। इवन दो यू आर गोइंग थ्रू दिस पेन, रिमेंबर दैट यू आर प्रोटेक्टेड गाइज, ओके। यही वाला कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया है। पीपल आर डिसइंटरेस्टेड। कंपैरिजन विद अदर पीपल हमें छोड़ना होगा, राइट। और इजी ब्रीजी मैसेज हमें क्या मिलता है? Because your standards, increase your standards, set yourself higher. Friendship. Make a date for a play day with one or more friends. Yeah. Let's take out your affirmation cards for the month of July. Pile number 1 में मैंने बस एक ही कार्ड निकाला था, but in this pile I will take out 3 cards because I actually want to take out 3 cards for you. All right, तो ये कार्ड डेफिनेटली आना चाहता है. I will take this one and certainly this one. Let's see what mind shift change you can focus on. What I have to say rarely matters. What I have to say rarely matters. Yes, people are busy in their own things, disinterested. When my mind and heart are aligned, when I have to say, what I have to say reveals genuine integrity, which makes people want to listen to me. Yes, ये जो हमने पकड़ा ना environment में, people are not interested in us, in what we have to share, what we have to, you know, what we feel and all. When my mind and heart are aligned, mind और heart को align करने की बात बोली जा रही है. What I have to say reveals genuine integrity, which makes people want to listen to me. है ना? कभी कभी क्या होता है कि हम बस माइंड गेम आप बोल लो, मैंने कि आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज दैट यू नो दैट वे, बट कभी कभी हम अपने माइंड में ही रह के ना अपने दिल को छुपा देते हैं और बस we believe in doing the right and the logical things, but at times you should just bring your mind and heart aligned, और दिल हल्का करके जो भी बात करते हैं ना, तो वो दिल को जाके छू जाती है. तो people also try, you know, start associating with us, you know, the same similarity factor, and that's what makes people take a listen to you. Otherwise most of the thing is like, you know, intellectual stuffs, and people don't really maybe relate with that much. यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है सेल्फ इस्टीम का इशू है. ओके यहाँ पे देखो, माई डेस्टिनी इज टू एक्सपीरियंस पेन, सफरिंग एंड पर्सनल स्ट्रगल. ऑल राइट, देखो ये फ्यूचर एनर्जी है. यू कैन ऑलवेज embrace, you know, you can always, ये जो hurt है ना, this is your protection. Don't let that, it's just how you are seeing it, because this is like, you know, you're pulling your own heart ka strings. So yeah, how much you will allow this sword to penetrate your heart depends on you, with your mindset. आप किस तरह से देखते हैं. My destiny is to experience pain, suffering and personal struggle. और ये माइंड शिफ्ट फ्लिप करना है आपको, एंड क्या सोचना है, I now release any repetitive patterns that bind, limit and restrict my growth and evolution. आप देख रहे हो,
कोई भी एक पैटर्न है, कंपैरिजन विथ पीपल एक पैटर्न है जिसको हमको जाने देना है, अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है, न्यू बिगिनिंग को एम्ब्रेस करना है, क्योंकि ये यूनिवर्स ही तो लेके आ रहा है हमारे लिए, और वहाँ पे आपने एक न्यू बिगिनिंग एम्ब्रेस कर भी ली है. समथिंग दैट विल टेक यू ऑन अ ब्यूटिफुल जर्नी. I now release any repetitive patterns that bind, limit, restrict my growth and evolution. तो इस नए रास्ते पे आपको क्या मिलेगा? ग्रोथ मिलेगा, एंड देर आर नो लिमिट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस देयर. सो दिस इज व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड टू एम्ब्रेस. और फाइनल मैसेज आपका देख लेते हैं हम. थिंग्स शुड बी डिफरेंट इन माई लाइफ. थिंग्स शुड बी डिफरेंट इन माई लाइफ. आप ऐसा सोचते हैं, और आपका मैसेज क्या है? एंगर है किसी तरह का. यहाँ पे सेल्फ स्टीम का 2 कार्ड आया है. देयर इज समथिंग रिलेटेड विथ आवर सेल्फ स्टीम गाइज, एंड देन देयर इज अ एंगर ऑल्सो. थिंग्स दैट हैव बीन आउट ऑफ बैलेंस विल सून बी बैक इन बैलेंस as I remove confusion and gain greater clarity in my life. Order will be restored. I will read this once again for you, okay? हमारा पैटर्न क्या है? Things should be different in my life. लेकिन डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? जब आप ये थॉट प्रोसेस को एम्ब्रेस करेंगे. Things that have been out of balance will soon be back in balance as I remove confusion and gain greater clarity in my life. Order will be restored. तो फोकस हमें क्या करना है? दूसरों पे नहीं करना है, अपने आप पे करना है, और तब हम ये चेंज अपने लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे. आप देख रहे हो कि कैसे आपका ये थॉट प्रोसेस है. थिंग्स शुड बी डिफरेंट इन माई लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, कि उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है, उनकी लाइफ बहुत वाइब्रेंट है, मेरी क्यों नहीं है. बट जब अपना फोकस अपने आप पे लाएंगे तो वो चीज़ें चेंज होंगी. So that was the guidance coming for all the pile number 2 guys. I hope that this helps you. Do remember that in the month of July, no matter what happens, you are doubly protected by the universe. And yes, you can only save yourself from this. You can actually, not only are you protected by the universe, definitely आप protected हैं, but आप भी अपने आप को protect कर सकते हैं by taking charge of the situation, because ये future की energy है, and you can always be well prepared to tackle it and not let these swords break your heart, pierce your heart. Prepare yourself, shield your heart. They will not be able to touch you. So that is the guidance. I hope that this helps you. Thanks for watching, and I will see you again. Take care and bye for now. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर जुलाई गाइडेंस. चलिए देखते हैं गणेशा का मैसेज आपके लिए क्या है. एंड वो बोल रहे हैं कंसंट्रेशन. तो गणेशा का पावर पैक्ड एनर्जी फॉर यू एज वी स्टार्ट द मंथ ऑफ जुलाई, और वो बोल रहे हैं कंसंट्रेशन करिए आप अपने चीज़ों पे. कंसंट्रेशन, शायद स्कैटर्ड एनर्जी हो रही है, क्या हो रहा है चलिए देखते हैं. लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे ये गणेश जी कुछ काम ही कर रहे हैं अपना, तो आपको क्वाइट पॉसिबली फॉर मोस्ट ऑफ यू इट कुड बी फोकसिंग ऑन योर क्राफ्ट, ऑन योर वर्क. जर्नी कैसे होने वाली है चलिए एक्सप्लोर करते हैं. और जर्नी होने वाली है पैशन एंड प्लेजर, बट हाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे क्लियरली आपको बोला गया है कि कंसंट्रेशन करना पड़ेगा. जुलाई का महीना इज ऑल अबाउट फोकसिंग, कंसंट्रेशन. और अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो पैशन एंड प्लेजर कैन बी योर्स, अदरवाइज ये ब्लॉक्ड एनर्जी है आपके लिए. बट येस, यू कैन वर्क ऑन इट एंड मेक दिस जर्नी फिल्ड विथ पैशन एंड प्लेजर. ऑलराइट, चलो वैंडरिंग पाथ भी है. व्हाट इज दैट यू विल बी डीलिंग विथ, लेट्स सी. Concentration. Maybe you are doing something which needs your concentration. Let's see. यहाँ पे भी ये blocked energy है. Why? Interestingly enough, in all the 3 piles today, this card is under protection message. और ये कार्ड है 31 नंबर.
There is a book here. He is writing something there. Maybe some of you are writing book or something. Maybe you need to write something and you need to focus on that. ऐसा हो सकता है. Why? $31. This is your message. Let's read the protection message for all of you. Pile number 3. Sometimes subconsciously denying the truth may drive you towards a specific outcome that actually aligns with an intention hidden from your awareness. Sometimes subconsciously denying the truth may drive you towards a specific outcome that actually aligns with an intention hidden from your awareness. For example, you may want to be prominent in your profession, but your desire is not really about sharing your talents, but about making yourself feel better. Because fame would cause people to admire and approve of you. Or you may want to reunite with the partner who rejected you because you believe that because your love continues to be strong. But deep down, what you really desire is to have the last word with that person. Now is the time for deep soul searching of the why that drives your choices. What you uncover will set you free and bring out ever closer to the happiness you seek. Yani ki, again say a very similar message from like the pile 1 and 2, but of course with different elements. यहाँ पे भी हमें बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं. क्या is it aligned with our higher purpose or we are just doing it for the satisfaction of our ego. तो वो चीज़ हमको देखना पड़ेगा. साथ में है कंसंट्रेशन का मैसेज और पैशन एंड प्लेजर. तो विद दिस गाइडेंस लेट्स डाइव डीप इनटू इट विद दीज कार्ड्स. किसी चीज़ का बर्डन हमने ले लिया है. Thank you to your angels for the guidance coming for all the pile number 3. What is that they know about the July journey? 7 of Pentacles in reverse है. कुछ चीज़ें grow नहीं हो रही हैं और everything is fine. Yeah, you know, are we doing something which is not working, which is not moving forward, and we are pretending that everything is fine? Because ये जो card है, this is an extra card in this deck and we have got the card. So with this 7 of Sword, how can everything be fine? So are things not fine? Are things not growing? And we are still kind of, you know, hope against the hope. Hoping against the hope वाली कुछ situation लग रही है. यहाँ पे एक question है. You know, asking ourselves, what are we doing? 5 of Sword conscious level पे है. Subconscious level पे. We feel that we are being defeated in this situation. King of Sword was exactly in this position in pile number 1 if I'm not wrong. 3 of Cups, yeah. 3 of Pentacles. Yes, you are hoping for a new beginning. Maybe you are hoping, you know, your attitude is that of आपका attitude में काफ़ी curiosity है, risk ले रहे हो आप. You are trying to have a very positive and a, you know, beginner's mindset. Beginner's mindset का आपका attitude है. काफ़ी passion भी है, actions भी है, 2 of Wands भी है. Wow. Yes. King of Wands in reverse में है, back of the deck में.
और हमें क्या पता चल रहा है? सो वी हैव द किंग हियर एंड there is definitely something that is for you to enjoy here. The journey is going to be great for you, ऐसा लग रहा है. पैशन भी है, प्लेजर भी है, मस्ती है लाइफ में, but still we will need to unlock that. Five of Swords subconscious level पे you feel you are being defeated by these people. These Three of Cup people, probably they are letting you down. You don't feel part of the tribe. You feel that they are defeating you. और यहाँ पे Three of Pentacles के in reverse के साथ काम पे भी असर पड़ रहा है. हालांकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, मोटिवेटेड हैं, फायर इन द बेली है, एक्शन लेना चाहते हो, नो मैटर व्हाट चैलेंजेस यू आर सीइंग दिस. देखो ये तो चैलेंज है, चीज़ें ग्रो नहीं कर रही हैं एंड यू आर लाइक एवरीथिंग इज फाइन, यू कीप गोइंग ऑन, बट क्लियरली यू फील डिफीटेड बाय दीज पीपल. यू फील डिफीटेड एंड ये जो चीज़ें, बट यू हैव अ बिगनर्स माइंडसेट. यू आर लाइक ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन विद द बिगनर्स माइंडसेट. Let's approach things without any conditioning. और यहाँ पे फिर आप वही हो कि नहीं, मेहनत करेंगे, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई एम सराउंडेड विथ, मैं मेहनत करूँगा. समझ रहे हो? ऑल राइट. बट यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप कुछ रास्ते चूज़ कर रहे हो, रास्ता आगे बढ़ा रहे हो. यू आर मूविंग, यू आर मेकिंग सम डिसीजंस हियर, यू आर मेकिंग सम चॉइसेस हियर, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ maturity, expertise. क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड कौन है? ही इज द किंग. और किंग आप रीजन के बाद बनते हो, स्टेजेस के बाद बनते हो, एक्सपीरियंस के बाद बनते हैं. तो यू हैव अर्नड दिस थ्रोन, यू हैव द माइंड सेट, यू हैव द डिसीजन मेकिंग टू मेक अ प्रॉपर डिसीजन. और आप इस, और ये वाला कार्ड आपका फर्स्ट कार्ड है. और यहाँ पे आप अपने क्वाइट पॉसिबली जुलाई के महीने में ना आप यू विल स्टार्ट सीइंग योर सिचुएशन, यू विल स्टार्ट analyzing the situation in your life, the condition, you know, the circumstances in your life, people in the life. आप analyze करना start करेंगे. You know, you will not be, you will not see things any more with emotional part of it. You will make strategic decisions, like really seeing things for what it is, instead of, coming in your emotions and all that. And you are even ready for a new thing. आप यहाँ से आप अपने माइंड में जाके चीज़ों को बिल्कुल एक यू विल ट्राई एंड सी थिंग्स फॉर व्हाट दे आर विदाउट गेटिंग इमोशनल एंड पर्सनल अबाउट इट. एंड क्योंकि आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है, एटीट्यूड में क्या है कि अगर कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो आई एम रेडी टू टेक अ प्लंज इनटू समथिंग न्यू. एटीट्यूड में भी बिल्कुल वही वाला टशन बोलो तो आ गया है. जो कि किंग ऑफ सोर्ड कौन होता है? बोलते कि सी थिंग्स फॉर व्हाट इट इज. अगर इसमें ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन की जरूरत है. ये बोलते रहने से कि ऑपरेट नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा. टेक टफ डिसीजंस इज किंग ऑफ सोर्ड. हियर यू आर एनालाइजिंग द सिचुएशन. हाँ ठीक है, क्या हुआ? ये तो बहुत दिन से ग्रो नहीं कर रहा. आई एम ऑलवेज प्रिटेंडिंग कि थिंग्स आर नॉट ग्रोइंग. आई एक्नॉलेज दैट आई एम बीइंग डिफीटेड इन दिस सिचुएशन, पीपल आर डिफीटिंग मी. चीज़ें वर्कआउट प्रोफेशनल फ्रंट पे भी नहीं हो रही है. मैंने कि हर तरह से फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रही है. ये वाला फैमिली प्रॉब्लम यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, द वर्क फ्रंट में. एंड ये जो एटीट्यूड पे आप बैठे हो ना, ये थ्रोन के साथ, थ्रोन पे जो आप बैठे हो तो और आप यू आर डूइंग ऑल द टोटल एनालिसिस ऑफ योर सिचुएशन एंड यू आर रेडी टू टेक अ प्लंज. अगर मुझे इसके आगे भी बढ़ना पड़े तो यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क. इस तरह की एटीट्यूड है आपकी. ठीक है? एंड येस, यू आर रेडी टू टेक द एक्शन दिस मंथ. यू विल नॉट शाई बैक फ्रॉम टेकिंग इवन अ डिफिकल्ट डिसीजन. वो मुझे लग रहा है बिकॉज यू आर इन द मूड, यू आर इन द माइंड, you are in the action and you are ready to take the risk also. Start something new. And yeah, towards the end of the month, I really see you considering making choices, choosing your direction. ठीक है? क्योंकि King of Wands at the back of the deck, you are tired of
not being able to see where all this will lead to. आप देख रहे हो Seven of Pentacles is not growing and you have been pretending long that it's okay, fine, everything is fine, but you're not fine. You are here with 10 souls. It's not fine to be with 10 souls. And now you are like, okay, enough is enough. I will take a strategic stock of the situation and I will take the actions. I will not refrain from not taking actions because I have refrained from taking not action for a long time. Now I am ready to take risk also. If I have to get started with something, I will take the plunge. और यहाँ पे आप consider कर रहे हैं. So even though things are not working, you are in a very strong position. जहाँ पे आप you are ready to take the difficult decision. You are ready to take that passion action of a Knight of Wands. Knight of Wands जैसा कोई action नहीं ले सकता है. And with that beginner's mindset, let's start it again. अगर आपको, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स सोर्ड इन रिवर्स है कि आप कितना भी कोशिश करके ना, पेज ऑफ सोर्ड क्या है कि आगे बढ़ नहीं पा रहा है, आपके एंडेवर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सब चीज़, एंड बिकॉज एंडेवर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप बढ़ना चाहते हो पर बढ़ नहीं पा रहे, तो द किंग ऑफ वॉन्ड एंड यू इज नॉट एबल टू सी कि अगर मेहनत भी कर रहे हैं, काम ही नहीं बढ़ रहा है, तो आगे ये कैसे, हाउ विल इट पैन आउट इन द लॉन्ग फ्यूचर, यू डोंट नो दैट. और एग्जैक्टली नाउ कम्स द मैसेज फ्रॉम गणेश जी. कंसंट्रेशन कर रहे हो एंड किंग ऑफ सोर्ड कंसंट्रेट्स ऑन दैट व्हाट इज हैपनिंग without getting emotional, taking stock of the situation, analyzing. You are concentrating on each and every aspect of the situation in the month of July. A very bold reading indeed, and very tapped into the power reading. And you are really questioning the why of everything. ये है, ऐसे है, why. ये लॉन्ग टर्म में कैसे पैन आउट होगा नहीं होगा, फिर क्यों कर रहे हैं. सो एवरीथिंग यू आर गोइंग डाउन टू, यू आर exploring it to the finest detail, the tiniest detail, आप ऐसा बोल सकते हैं. चलिए, तो ये आपका गाइडेंस है, which is awesome. चलिए देखते हैं. Totally tapped into your power, energy है आपकी. And let's see. Give me a second. और आपका कार्ड है सरेंडर डिनाइल. यस, यू आर नो मोर रेडी टू डिनाइल. मुझे लगता है कि आप टोटली ऑलरेडी पावर में टैप्ड इन हो. यू हैव बीन डिनाइंग समथिंग. एक्सक्यूज मी, एवरीथिंग इज फाइन. But now you are like, no, you have owned the sword. Yes, you are like totally tapped into your power, guys. मैंने कि रिस्क लेना है तो लेंगे, आगे बढ़ना है तो बढ़ेंगे, वो वाली एनर्जी आपकी. Open to the magic of every moment and sense the awe and the wonder in all of life. The attitude will keep you connected to the ecstasy of life. यही तो है, like it's time to. यहाँ पे देखो 10 of sword वाला एनर्जी है, यहाँ पे बिगनर्स माइंडसेट आ गया है, रेडी टू एक्सप्लोर द न्यू, रेडी टू टेक डिसीजन, चेंज पाथ्स. तो यही है. तो तीनों रीडिंग्स जो आज की हुई है सिमिलर मैसेजेस है, मे बी बिकॉज वी आर स्टार्टिंग इनटू द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर एंड इट्स टाइम फॉर सम कोर्स करेक्शन. 6 महीने देख लिए हैं, क्या चीजें हो रही हैं, वर्कआउट हो रहा है, नहीं हो रहा है. यहाँ पे इट्स टाइम फॉर अ बिगनर्स माइंडसेट, विच इज व्हाट इट इज. चलिए देखते हैं हम यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल के. All right. Yes. आगे आपके लिए ट्रेजर चेस्ट है. An unforeseen windfall of new abundance comes to you in the month of July. And यहाँ पे है accept heaven's help. You are being helped even if you don't. Wow, you are being helped. Accept heaven's help. How synchronistic is this and how systematic and logical is this? You are being helped. Accept heaven's help. तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं. चलिए हम देखते हैं आपके एफर्मेशंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई क्या रहने वाले हैं. हम आपके लिए 3 एफर्मेशंस लेंगे. वाओ, आई विल टेक दिस. दोनों ही हेल्थ से रिलेटेड एक लव का है, एक हेल्थ का है. And let's take this one. If I am needed, I feel loved, appreciated and accepted. यानी कि आपको ऐसा लगता है कि जब आपकी ज़रूरत होती है तभी आपको लोग आपकी you are accepted, you are loved and you are appreciated. लेकिन अगर आपकी ज़रूरत नहीं होती है तो लोग आपको लव नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते. ये माइंडसेट को हमको चेंज करके कैसे करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.
I now nurture others as much as I nurture myself. I am lovable even when I am not nurturing or giving someone something. Right? I now nurture others as much as I nurture myself. मैं दूसरों को उतना nurture करता हूँ जितना मैं अपने आप को nurture करता हूँ. And I am lovable even when I am not adding value. ठीक है? तो कभी हम value add करेंगे, कभी हम उतने fit frame में नहीं होते कि value add करेंगे, and that's totally okay. यहाँ पे देखिए शैडो मैसेज क्या है. माई इम्यून सिस्टम बोन्स एंड जॉइंट्स आर वीक एंड वनरेबल. क्वाइट पॉसिबली बॉडी परेशान कर रही है. बॉडी क्या हो गई है? डिसईज पे है. डिसईज. पर ये डिजीज पहले कहाँ पे आता है? पहले हमारे माइंड में आता है गाइस. तो क्वाइट पॉसिबली यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस है. माई इम्यून सिस्टम बोन्स जॉइंट्स आर वीक एंड आई एम वनरेबल. और ये थॉट प्रोसेस को हमको फ्लिप करके कौन सा थॉट प्रोसेस लेके आना है? I feel safe and secure in the world. I have multiple families who help me feel like I belong among, supported, and I have a say. So basically, when we don't feel connected with our Mother Earth, we don't feel connected with people around us, we feel unsafe. तो वहाँ पे हमें flip करनी है अपनी thought process को. और wow, all the 3 green colors. ग्रीन कलर इज टेलिंग मी कि हार्ट चक्रा का कुछ है. आई फील रिजेक्टेड बाय माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. आई नाउ हैव अ. देखिए आप यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे एक लव का मैसेज है, एक बॉडी के लिए आपके मैसेज है, और एक आपके सैडनेस के लिए मैसेज है गाइस. हालांकि सैडनेस यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, बट अगर कार्ड आया है तो डेफिनेटली कोई सैडनेस है डेफिनेटली, जो आप अपने बोल्ड अवतार में ना छुपा के रखते हो. किंग ऑफ सोर्ड अपने इमोशंस को छुपा के रखता है. राइट? आई नाउ हैव अ वेल्थ ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स हु मेक मी फील लाइक आई बिलोंग. आई विल रिपीट. आई नाउ हैव अ वेल्थ ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स who make me feel I belong. What a beautiful message. यहाँ पे भी देखिए फैमिलीज का कंसर्न है, यहाँ पे भी फैमिली एंड फ्रेंड का कंसर्न है, और यहाँ पे क्या चीज़ का कंसर्न है? नर्चर अदर्स है. तो रिलेशनशिप इशू कमिंग बिग टाइम फॉर पाइल नंबर 3. यू नो, नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड बाय पीपल अराउंड. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमको बहुत बिग टाइम हीलिंग की ज़रूरत है. जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं वो हमारे मिरर इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. डू अंडरस्टैंड दिस. एंड वी विल हैव टू डू द हीलिंग फॉर द सिचुएशन, फॉर अदर्स एंड फॉर आवरसेल्व्स ऑल्सो. देन ओनली वी कैन ब्रेक थ्रू दिस. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. हमें लगता है कि हमें एक्सेप्ट हेल्प नहीं मिल रहा है, बट येस वी आर बीइंग हेल्प्ड. और हमें ये लगता है कि सब कोई हमें हराना चाहते हैं, हम हार रहे हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि जिस तरह से आपका खाली ये फैमिली वाला कार्ड्स आया है, ये तीनों कार्ड्स फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप पे बेस्ड है. टॉप ऑफ द माइंड में आपका फोकस क्या है? 3 ऑफ कप्स, अनसपोर्टेड पीपल. सबकॉन्शियस में एक जो पैटर्न है बैठ गया है, लाइक आई एम सराउंडेड बाय हॉस्टाइल पीपल, है ना. वो डर अंदर में बैठ गया है. मे बी आपकी एक्सपीरियंसेस ऐसे हुई होंगी, लेकिन वो डर अब क्या है? एक रिजिड स्टबर्न पैटर्न बन के हमारे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है. देखो ये कार्ड ना यहाँ का नहीं है, फ्यूचर का नहीं है, ये सब हमारे सबकॉन्शियस का है. दिस इज हाउ वी आर सीइंग पीपल बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है. अगर आप यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में ही हमें लग रहा है कि हम हॉस्टाइल इन्वायरमेंट से सराउंडेड है ना, इसीलिए हम कॉन्शियस हम हर लोगों को ना उसी लेंस से देख रहे हैं. यहाँ पे भी हम उसी लेंस से देख रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस में पैटर्न क्या है कि पीपल हैव बीन मीन टू मी, दे हैव डिफीटेड मी, दे हैव बिट्रेड मी. तो हम पास्ट को ही आगे लेके आ रहे हैं और अपने आप को उससे एनर्जी से रिलीज नहीं कर पा रहे हैं. और इसी लेंस से हम अभी भी देख रहे हैं, इसी लेंस से हम पर्सनल लाइफ को भी देख रहे हैं, इसी लेंस से हम प्रोफेशनल लाइफ को भी देख रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट कमिंग इन गाइज. ओके, तो हमें एक, आपकी एटीट्यूड तो बहुत सही है, दैट ऑफ अ फूल. इस थॉट प्रोसेस में भी आप अपने थॉट पैटर्न्स को फ्लिप करके, जो कि हमने देखा है यहाँ पे, आप इस न्यू एटीट्यूड में इंटीग्रेट करिए, अपने एक्शंस में इंटीग्रेट करिए, एंड यू विल सी हाउ थिंग्स टर्न ब्यूटिफुली फॉर यू लाइक दैट.
तो इसी लेंस से हम अपने पर्सनल लाइफ को भी देख रहे हैं, इसी लेंस से हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी देख रहे हैं. तो आई थिंक विद दिस किंग ऑफ सोर्ड डेफिनेटली यू आर concentrating on every small thing, ki what is happening, what is not happening, and you are ready to change things. Even if it was like seeing things with this pattern, you are ready for a change. ये है beginner's mindset. फूल का कार्ड क्या है? अपने आप को चेंज करके दूसरे रास्ते पे लेके जाना. Even if it is a thought process, the way I see people, the way I see my life situation, आप बिल्कुल बिना कोई विक्टिम माइंडसेट के आप चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं. आप अपने आप को भी एनालाइज करेंगे एंड देन यू विल टेक अ डिसीजन फॉर योर हाईएस्ट गुड, नॉट लाइक अ विक्टिम माइंडसेट. आप अपने पावर में टैप इन करके आप अपने लिए वो डिसीजंस लोगे जो आपको आगे बढ़ाएगी, और वो आपको बढ़ा भी रही है. सो दिस वॉज द गाइडेंस एंड यू विल टैप इन टू योर ब्यूटिफुल यू. So that was the guidance coming for all the pile number 3 guys. Do let me know if this helps you. Thank you so much for watching me and wishing you all a very happy July. Bye.